لاہور شہر نہروں اور باغوں کا شہر تھا۔ منچلے یہاں بیٹھتے، شعر و سخن، قصہ کہانیوں کی محفلیں جمتیں، فرصت کو ذوق میں اثر تھا، تہذیب مالا مال رہتی تھی۔ کشمیری دروازے کا رخ کشمیر کی طرف تھا، اس لیے یہ نام پڑ گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشمیریوں کے یہاں بس جانے سے اس دروازے کا یہ نام ٹھہر گیا ہو۔ سکھوں کے عہد کی اس حویلی میں کبھی ریاست اور سیاست کی شطرنج کھیلی جاتی ہوگی، آج یہاں علم کی بساط پھیلی ہے۔ لڑکیوں کے اس اسکول کی عمارت کا دروازہ اینٹ کے کام کا دلکش نمونہ ہے۔ بلند قامت دروازے پر جالی اور سجاوٹ کا کام ملی جلی تہذیبوں کی عکاسی کرتا ہے۔ دیوار کی تفصیل میں، برجیوں اور کنگوروں میں مغل فن تعمیر کا اثر جھلکتا ہے۔ آج جہاں کاریں کھڑی کرنے کی جگہ بن گئی ہے، وہاں کسی منچلے نے اپنے لیے نئی طرز کا بنگلہ بنایا تھا۔ اسے چھوٹا کاشانہ کہتے تھے اور اس میں انگریزی عہد کے ذوق کے آثار نظر آتے ہیں۔ دروازوں کے اندر کی زندگی یوں تیز رفتار نہ ہو مگر اپنا باقاعدہ معمول رکھتی ہے۔ لوگ اپنی رفتار سے اپنے اپنے کاروبار کی طرف روانہ رہتے ہیں۔ ضرورت نے فن کے ورثے پر پیوند لگا دیے ہیں، لیکن اصل ہنر کی چابک دستی اپنی نزاکت میں آج بھی دعوت نظارہ دیتی ہے۔ چوبکاری میں نقش و نگار کی موزونیت اس فن پر خود اپنی دلیل ہے۔ کشمیری دروازے میں لکڑی کا کام اپنے رہنے والوں کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صوفی والی مسجد وہ پرانی تاریخی عمارت ہے جو کشمیری بازار کی نگران و نگہبان آج بھی ہے۔ خستہ مکان، سرنگوں، سربمہر دروازے اپنی عمر کو پہنچے، لیکن اپنے اندر جانے کیا کیا داستانیں رکھتے ہیں۔ وہ جو اتنے خستہ نہیں ہیں، وہ اپنے مکینوں سے آباد ہیں۔ اونچی کھڑکیاں آج بھی روشنی اور ہوا کا اہتمام کرتی ہیں۔ ان مکانوں میں رہنے والے کسی طرح بدمزہ نہیں ہوتے۔ ان گلی کوچوں اور مکانوں میں زندگی سہل بھی ہے اور آرام دہ بھی۔ کشمیری دروازے کی مناسبت سے چوبکاری کے کام کا تکلف اور چابک دستی رہنے والوں کے ذوق پر گواہی ہے۔ پرانا پن اپنی جگہ، مگر پختگی آج بھی روزگار کو پناہ دیتی ہے۔ کسی کی روزی، کسی کا عیش اس خستگی میں اپنی اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ ان دروازوں میں پلنے والا مستقبل انگشت بدندہ ہے اور ماضی سربگریباں، حال کو رشتہ و پیوند کی خاطر سمجھنے پر مجبور۔
शान शौकत सिक्का बंद हो तो वक्त से मिटाए नहीं मिटती। हाँ, हम नफसों की सोहबत यारां परेशान हो जाती है। महफिलां ना बहुत लगदियां सन, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਢੋਲਾ ਤੇ ਸੰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਕਾਮ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਕਚਹਿਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਕਿ ਮੱਲਿਆ ਚੌਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ। तो हूँ तो गल नहीं, हूँ तो दौड़ गई, बहुत दूर चली गई। वो जो कभी तामीर का हुस्न रहा होगा, आज रिवायत की धुन के सिवा कुछ नहीं। हुनर की रिवायत भी सीना बसीना चलती है, दर्द हर अहद में मिन्नत कशे दवा रहता है। लकड़ी के इन चौबारों में सरगोशी भी गूंजती है। भरे पूरे दिन में खामोशी और सन्नाटे का राज रहता है। रहने वाले आहिस्तगी से रहते हैं या यहाँ आवाज़ भी तहजीब का सलीका पहचानती है। ये हमारी 100 साल पुरानी हवेली है। मुझे नहीं पता, मैं तो 45 साल के जानती हूँ। हमारी ये सकावत बहुत अच्छी थी, सारे अजीज़ों का बहुत अच्छे थे। अब तो इनसे हवेली में कोई रहता नहीं, 2-3 फैमिलियाँ रहती हैं। लेकिन अभी आजकल बहुत सकावत और इसकी सहावत में बहुत फ़र्क है। कुछ लोग हैं एक दूसरे से मिलते नहीं। अब तो पहले मोहल्ला इतना अच्छा था, एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ करते, अब तो कुछ नहीं है। ये देखिए आंखों के सामने है, सारा कुछ देख लें, कोई टूटा कोई फूटा हुआ, अंदर से भी देख लें। लेने की तो नहीं है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के हैं मसले। हम लोग बाहर जाने के हक में कतई नहीं है, ना आज है ना कल थे ना कल होंगे। इसलिए कि आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। यहाँ ना कोई एसी है, ना कोई हमने जदीद सहूलत ली हुई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ दोपहर को भी इतना आराम होता है कि जितना 3 टन के एसी में नहीं होता। आप हमारे घरों में कमरों में जाकर देखें, रात को भी छतों पे सो जाए तो इतना मज़ा, इतना लुत्फ़ है शहर में। सिर्फ हम शहर में अब ये है थोड़ा सा कि यहाँ का माहौल जो है ना वो थोड़ा सा इसलिए मुख्तलिफ हो गया कि लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं। हम शहर में बहुत खुश हैं, हमें बड़ा इत्मीनान और बड़ा मज़ा है। हम तो समझते हैं बदकिस्मत है वो लोग जो मॉडल टाउन और गुलबर्ग में रह रहे हैं। हम लोग तो जाते हैं वहाँ तो हमारा दम घुटने लग जाता है। हमें अपना शहर बहुत अजीज़ है, बहुत प्यारा है, आज भी है कल भी रहेगा। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के बाग, आप लोग ये जहाँ खड़े हैं ना, इसके नीचे इतनी तवील सुरंग है कि ये यहाँ से लेके शालामार तक जाती है, लेकिन यहाँ किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी। सहनचियों के ये नीचे दरवाजे एक हिस्से को दूसरे हिस्से से किस खामोशी से मिला देते हैं। ककैया ईंट की ऊंची दीवार में नई चौड़ी ईंटों का पैबंद लग गया है। मकान हमेशा मकीनों के लिए गुंजाइश पैदा करते चले आए हैं। इमारतें गिरा दी जाती हैं, पुरानी और खस्ताहाल हो जाती हैं, मगर तारीख के निशान आसानी से नहीं मिटाए जा सकते। कश्मीरी दरवाज़े की अहमियत मेरे ख़्याल में इसलिए अपनी जगह पर इनफरादी हैसियत रखती है कि ये दरवाज़ा एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट, जिसे आदम क्लॉथ मार्केट कहा जाता है, कश्मीरी दरवाज़े के साथ मुंसलिक है। गुरु नानक के चौथे जानशीन गुरु श्री रामदास यहाँ पैदा हुए। इस अकीदत के इजहार की खातिर यहाँ ये गुरुद्वारा बनाया गया। लाहौर शहर में सिखों की ये बड़ी खूबसूरत इबादतगाह थी। इसकी पुख्तगी में आज भी फ़र्क नहीं आया है।
गुरुद्वारे के इर्द गिर्द की इमारतें भी सिखों के लिए बहुत मोहतरम थीं और अपने अहद के ज़ौक़ तामीर का पता देती हैं। कश्मीरी बाज़ार के चौक में फ़न तामीर का एक नादिर नमूना सुनहरी मस्जिद है। इसके गुंबदों और बुर्जियों पर सोने का काम वक्त की कसौटी पर पूरा उतरा है। बुर्जियों के झरोके और ख़त्ताती निफासत और बारीक बीनी की मिसाल हैं। नवाब सैयद भिकारी खां की बनाई हुई ये मस्जिद मोहम्मद शाही अहद के फ़न का पता देती है। दीवारों और छत की पिच्चीकारी और गुलकारी का काम खुदा की अजमत के सामने बंदगी का इजहार है। मीनार और गुंबद उबूदियत का एतराफ़ है। इस चौक की हमाहमी 4 दरवाज़ों का संगम है। 4 जानिब का हंगामा यहाँ गूंजता है। बेतकल्लुफ़ी कारोबार के तकल्लुफ़ पर अपनी गिरफ्त रखती है।